they all are made up of cells. All living organisms are made up of cells. CELLS, cells. Okay, children? Okay, ma'am. Then what is cell? Cell is the smallest unit of all living organisms. Smallest unit है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है. जैसे ये मकान, आप जिस मकान में भी रह रहे हो, वो मकान कैसे बना है? इट इज मेड ऑफ बाय द हेल्प ऑफ सो मेनी ब्रिक्स. आप देखे होंगे सो मेनी ब्रिक्स को किसके द्वारा? सीमेंट, बालू के द्वारा जोड़ करके तब मकान बनाया जाता है. सेम थिंग हैपनिंग in our building also. Our house is also made, our house is made up by the joining so many bricks, and our body, same thing, is made up by joining so many cells. So children, cell is called as smallest unit of all living organisms. सारे living organisms का ये सेल जो है वो एक छोटा सा यूनिट है. Okay children, सेल्स ज्वाइन टुगेदर, सारे सेल्स मिल जाते हैं तो मिल करके क्या बनाते हैं? सारे सेल मिल करके बनाते हैं टिश्यू. हाँ, सारे सेल्स जो हैं, एक सेल, our body is made up of by the help of millions and millions and millions of cells. All these cells combine together and form, that is tissue. Okay, and all tissues combine together and form organs. So for example, this is our hand, this is one organ. Okay, so all tissues combine together and form organ. Okay children, all organs combine together and form organ system. ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइंड करते हैं और सारे ऑर्गन्स कंबाइंड करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. And all these organ system combines together and form one individual. और क्या बनाते हैं? एक living organisms को बनाते हैं. So in our body also there are so many cells or cell systems, organ system combined together and form one living organism. So in this chapter we will discuss about different ऑर्गन सिस्टम. हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, वी विल रीड अबाउट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम and our whole body depends upon this organ system. हमारा पूरा body जो है वो इसी organ system पे काम करता है. And the name of this organ system is the digestive system. There are so many systems are present in our body. There are so many systems are present in our body. For example, digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system, excretory system, skeletal system, and reproductive system. All these systems combine together and form one living organism. For example, one human being. Okay, children? Then come on. First of all, we will discuss about, that is about the digestive system. Okay children, तो digestive system, what is digestive system? क्या है digestive system? क्या है? तो digestive system helps in digestion of food. ये किस में help करता है? Food के digestion में help करता है. It helps in the digestion of food. Then how food digests in our body? Children, we take different food items. Aditya Singh, आवाज आ रही है, stop it. Okay. So we take different types of food. हम लोग खाने में different types of food को लेते हैं. For example, देखिए, चपाती, rice, fruits, pulses, vegetables. We take different types of food items in different types of food items. But children, in our organs, जैसे for example, जैसे हम चपातीज के बड़े बड़े पीस खाते हैं, तो बड़े बड़े पीस हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है. हाँ, वो कैसे जाएगा? How it goes?
कैसे हमारे बॉडी के एक एक सेल में जाएगा, वह चपातीज के टुकड़े, वो राइस के टुकड़े, वो पल्सेस, वो कैसे, हाउ इट विल गो, फ्रूट सिस्टम, डिफरेंट parts of the fruits, how it will go in different parts of the body. So children, so first we will discuss about that is digestive system. Digestive system are not in the same form we needed by our body. They are needed to be converted into soluble particles. इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज हम खाए हैं, दैट इज चपाती, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी चीज हम खा रहे हैं, ये हमारे बॉडी के एक एक सेल में जाता है. हाउ इट विल गो, कैसे जाता है, इट विल गो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अ सॉल्युबल फॉर्म. ये कैसे जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में जाता है. ये लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में जाता है. ओके, इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अ लिक्विड फॉर्म, इन अ वाटर सॉल्युबल फॉर्म. वाटर में सॉल्युबल होकर के ये हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में जाता है. ओके चिल्ड्रन, देन कम ऑन, देन देयर इज अ टर्म, व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन है क्या? हाँ, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस व्हाट इज डाइजेशन. तो डाइजेशन इज द प्रोसेस. डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस which convert different food items in a very fine and soluble form. Okay, so digestion is the process in which it convert different food items in a fine and soluble form. एकदम फाइन, एकदम बिल्कुल फाइन फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए और हमारे बॉडी के एक एक भाग में वो चला जाए. कैसे? बाय डिसॉल्विंग इन वाटर. ये वाटर में डिसॉल्व होकर के हमारे बॉडी के एक एक भाग में जाता है. देन व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स क्या क्या है? हाँ, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो. Okay children, so first our digestion is started from our mouth. हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. आदित्य सिंह, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? आदित्य सिंह, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? Yes ma'am. Okay, very good. आइए, our digestion is started from our mouth. ये हमारा माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, then what is the role of mouth? What are the substances present inside our mouth which help in digestion? जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. हमारे माउथ के अंदर क्या है जो कि वह डाइजेशन में हेल्प करता है? ओके चिल्ड्रन, कम ऑन, देखिए, our mouth, because our digestion is started from our mouth. तो माउथ में ऐसा क्या चीज है कि हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है? आइए, our mouth contains, children, our mouth contains teeth, tongue, salivary gland. Teeth, tongue and salivary gland. These are present in our mouth. Then what is the role of teeth? What is the role of tongue and what is the role of salivary gland in the digestion of the food? हमारे डाइजेशन में इसका क्या काम है? We will see one by one. आइए, come on about the teeth. अब हम अभी देखेंगे teeth. अभी हम कहें ना कि our digestion is started from our mouth and our mouth contains teeth, tongue and salivary gland. These three takes an important role in the starting of digestion. Starting of digestion में it takes very important role. Then come on about children, teeth. जब बच्चा जन्म लेता है तो कहता है the teeth start growing before we are born. हाँ, जब हमारे before we are born, हमारे जन्म से पहले ही
टीथ का निकलना शुरू हो जाता है, टीथ का निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन अपीयर होता है, हमें दिखता है कब? आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 7 मंथ। हाँ, निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो दिखता है कब? दैट इज आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 7 मंथ। किसी किसी का 9 मंथ के बाद भी दिखता है टीथ। ओके, तो चिल्ड्रन, देयर आर 2 kinds of teeth. Okay, two sets of teeth present in our mouth. हमारे माउथ में 2 तरीके के teeth होते हैं. One is called as milk teeth, another is called as permanent teeth. Then question arises, what is milk teeth? जब बच्चा जन्म लेता है, मैं कहे कि जन्म से पहले टीथ का निकलना शुरू होता है, बट हमें दिखता है, अपीयर होता है आफ्टर 7-8 मंथ्स के बाद। ओके, आफ्टर 7-8 मंथ्स के बाद हमारा ये टीथ जो है वो दिखता है। अब आइए, देयर 2 सेट्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे माउथ में 2 तरीके के 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक को हम कहते हैं मिल्क टीथ and another is called as permanent teeth. Then what is milk teeth and what is its function? देखिए, मिल्क टीथ बच्चे के माउथ में नियरली 2 years 3 years में 2 years की तक ये सारे मिल्क टीथ निकल जाता है, अप टू 2 years। हाँ, 1 to 2 years, it is given in your book 1 to 2 years। हाँ, ऐसे भी आप देखे होगे, अपने आप मम्मा से पूछोगे कि आपके टीथ कब आए, तो आपके टीथ जो है वो चले आते हैं 1 to 2 years, मीन्स 2 years तक वो कंप्लीट मिल्क टीथ जो होता है वो आपके माउथ में आ जाते हैं, मिल्क टीथ। दे आर 20 इन नंबर, इनका नंबर जो होता है वो 20 होता है। ओके, दे आर 20 इन नंबर एंड 10 ऑन अपर जो and another 10 in lower jaw। ये upper jaw में 10 होता है और lower jaw में 10 होता है। Okay children, then question arise here children, milk teeth जो होते हैं वो after 6 years 6 साल के बाद वे मिल्क टीथ आपके माउथ में 6 ईयर तक रहता है। इसके बाद ये मिल्क टीथ का गिरना शुरू हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। And slowly another types of teeth come। और फिर धीरे धीरे दूसरे तरीके के टीथ चले आते हैं and they are called as permanent teeth। और ये permanent teeth ह्यूमन बीइंग के माउथ में तब तक रहता है, बूढ़े होने तक ये परमानेंट टीथ रहता है। हाँ, जब तक ये ओल्ड स्टेज तक, मीन्स दिस परमानेंट टीथ जो है वो ओल्ड स्टेज तक आपके माउथ में रहता है। बट हो सकता है किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए या कहीं आप गिर जाते हो, तो क्या होता है, यह परमानेंट टीथ जो होता है वह गिर जाता है। तो परमानेंट टीथ जब गिर जाता है तो कभी काल किसी किसी के माउथ में परमानेंट टीथ आ जाता है और कभी काल किसी किसी के माउथ में परमानेंट टीथ नहीं आ पाता है, तो उसको आर्टिफिशियल टीथ भी लगाया जाता है। ओके चिल्ड्रन, देन कम ऑन, then this is all about teeth, means there are 2 sets of teeth present in our mouth, that is first is called as milk teeth and another is called as permanent teeth। okay, आदित्य सिंह आवाज आ रही है ना? Yes ma'am। okay, very good। आइए, then come on about structure of teeth। ये जो teeth होते, there are 2 parts of the teeth। आप देखे होगे ये जो दांत होता है, टीथ जो होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड एज क्राउन, अपर पार्ट को हम कहते हैं क्राउन। एंड ओके, द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ, जो आप व्हाइट पोर्शन देखते हो, इट इज कॉल्ड एज क्राउन। एंड जो आपके जॉ में गम्स में, ये जो आपका गम्स में घुसा हुआ रहता है, इट इज कॉल्ड एज रूट। वह रूट जो है वह गम्स के अंदर होता है। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द टीथ, दैट इज क्राउन एंड रूट। द रूट इज इनसाइड द गम एंड root is inside the gum and shoot is crown is, it is the visible part of the teeth।
Okay, children. And another things I am going to say about children, the outer part of the tooth, TOOTH, इसको कहते हैं वन टीथ. ओके, और जब बहुत सारे टूथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं टीथ, TEETH, टीथ. And children, the outer part of the tooth is made up of enamel. हाँ, ये जो आप अपना टीथ देख रहे हो, इसका आउटर पोर्शन जो होता है, it is made up of very hardest substance and it is called as enamel. यह हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है and it is called as enamel. So enamel is the hardest substance in our body. Then come on. Teeth are used to bite off large pieces of food. Then they grind the food into smaller pieces. अब हम क्या करते हैं, ये हम टीथ, TEEH, टीथ की सहायता से क्या करते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, मे बी चपातीज, मे बी फ्रूट्स, मे बी राइस, मे बी एनीथिंग, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, वी क्रश, हम क्रश भी करते हैं, ग्राइंड भी करते हैं फूड को, and convert into very small pieces and convert into small pieces. This is the function of the teeth. कभी कल पूछता है, what is the function of the teeth? The function of the teeth is to crush and grind the food into a smaller pieces. Okay, children. Then come on. In our mouth, ध्यान दो बेटे. In our mouth, there are 4 types of teeth are present in our mouth. There are 4 types of teeth present in our mouth. First is incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine, premolar, molar. These are the 4 types of teeth present in our mouth. Okay. Then question arises here, what is incisor and what is the function of incisor, canine, premolar and molar? These are the 4 types of teeth present in our body. In page number 142, the diagrams are given. देखिए, incisor देख रहे हो, canine, premolar, molar. Okay, children. And children, at the age of 20 years, जब बच्चे 20 years के हो जाते हैं तो उनके माउथ में 32 टीथ हो जाते हैं. 32 टीथ, TEETH, उनके माउथ में 32 टीथ हो जाते हैं जब वो 20 years के हो जाते हैं. तो 16 अपर जो and 16 लोअर जो. Okay, children. Then come on. What are the number? देखिए, the last pair of molar teeth is called as wisdom teeth. अभी मैं उसको भी समझाऊंगी. देखिए, canine, पहले first incisor. Incisor are 8 in number. हमारे माउथ में इंसीजर टीथ की संख्या जो होती है वो 8 होती है. 2, इधर 2, 4, 6, 8. 4 अपर एंड 4 लोअर जो. 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है. इंसीजर टोटल 8 होते हैं. 4 अपर जो एंड 4 लोअर जो. समझ में आया? एंड देयर नंबर इज 8 in number. अब आइए कैनाइन. हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैनाइन? द कैनाइन चिल्ड्रन, दे आर 4 in number. कैनाइन्स आर 4 in number. देखिएगा, 1, 2, 3, 4. Canines are 4 in number. Okay, 4 in number. 1, 2, 3, 4. 4 in number. इस कैनाइन टीथ की सहायता से 1, 2, 3, 4. कैनाइन टीथ की सहायता से जानते हो हम लोग क्या करते हैं? कैनाइन टीथ की सहायता से हम लोग किसी चीज को, जैसे क्या कहें, जैसे हम लोग अगर जो नॉन वेज खाते हैं तो फ्लैश जैसे मीट वगैरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खींचते हैं ना. तो इट विल डू विद द हेल्प ऑफ दिस कैनाइन.
हम केनाइन की सहायता से करते हैं। किसी को टीयर करते हैं, किसी चीज को टीयर करना होता है, देन वी यूज दिस केनाइन टाइप्स ऑफ टीथ। आइए, एंड नेक्स्ट इज प्रीमोलर। प्रीमोलर्स आर आल्सो 8 इन नंबर। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, 2, 4, 6, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। प्रीमोलर्स दे आर आल्सो 8 इन नंबर। हो गई। अब आइए, दैट इज मोलर टीथ। मोलर टीथ, मोलर टीथ्स आर 12 इन नंबर। ये 12 होता है। मोलर टीथ्स आर 12 इन नंबर। अब ध्यान दीजिए, कितने होते हैं? 12 होते हैं। 6 अपर एंड 6 लोअर। 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। बट वेयर आर दीज मोलर टीथ्स आर प्रेजेंट? आपके बुक में लिखा हुआ है, द लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ इज कॉल्ड एज विजडम टीथ। देखिए, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, और उसके लास्ट में एक 1 होता है, फिर लास्ट में नीचे 1 होता है, फिर लास्ट में इधर 1 होता है, फिर लास्ट में इधर 1 होता है, 2 इधर और 2 इधर। इट इज कॉल्ड एज विजडम टीथ। तो लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ इज कॉल्ड एज विजडम टीथ। इसको हम कहते हैं विजडम टीथ। तो मोलर टीथ्स आर 12 in number. Molar teeth are 12 in number, and out of 12, ध्यान दो, out of 12, 4, 2 upper and 2 lower are called as wisdom teeth. ये सबसे अंत में होता है। ये wisdom teeth जो होता है वो सबसे अंत में होता है। ओके ओके, 2 upper and 2 lower. It is called as wisdom teeth. Okay children, then come on. So there are 4 types of teeth present in our body. 4 प्रकार के teeth हमारे माउथ में होते हैं, that is incisor, canine, premolar and molar. And these all 4 types of teeth have different functions. सारे teeth का अलग अलग functions होते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज को खाते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, ये मोलर और प्री मोलर की सहायता से। ये जो प्री मोलर और मोलर इस साइड में है, उससे हम क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। ओके, कैनाइन से हम क्या करते हैं? टीयर करते हैं। हाँ, टीयर करते हैं। एंड इंसीजर, इंसीजर एंड कैनाइन, ओके, एंड इंसीजर इज प्रेजेंट हियर। दे आर आल्सो 8 in number. Okay, they are also 8 in number. So these are the 4 types of teeth present in our mouth. That is incisor, canine, premolar and molar. फिर से मैं एक बार नंबर बताने जा रही हूँ। What is the number of incisor, canine, premolar, molar? And आपको 32 होनी चाहिए। They must be 32 in number. ये कितने होने चाहिए? 32 होनी चाहिए। Okay, okay. So canine, sorry, incisor 8, canine 4, premolar 8, molar 12. टोटल कितने हुए आदित्य सिंह? 32 मैम। 32, very good. They are 32 in number. 16 upper jaw and another 16 is in lower jaw. Lower jaw. So this is all about different types of teeth present in our mouth. Then come on children, what is tongue and what is its function? The time is 32. अच्छा, थोड़ा सा tongue के बारे में पढ़ लो, इसके बाद then I want to solve your problem. And children, one thing I am going to say, अगर हमारा हाफ ईयरली एग्जाम का अनाउंसमेंट हो जाता है, डेट शीट आ जाता है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि मैंने लेसन 1 का रिवीजन करवा दिया है। तो देन अगेन आई विल मूव टू लेसन 1, 2, 3। अगर हमारा डेट शीट आ जाता है हाफ ईयरली एग्जाम का तब। ओके चिल्ड्रन, आप अपना रिवीजन भी करते रहो। आइए, टंग। देन व्हाट इज टंग? टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द माउथ. दिस इज आवर टंग.
It is present inside our mouth. It is muscular organ. It is made up of muscles. या muscles का बना हुआ होता है. Then children, ये हमारा टंग करता क्या है? टंग नहीं रहेगा तो क्या हमारा डाइजेशन नहीं होगा? No children. Tongue नहीं रहेगा, then our digestion is not be possible. Then what is the role of tongue? Tongue का रोल क्या है? देखिए, what is the functions of the tongue? Tongue का क्या functions है? First, to know the taste of the food, salty, bitter, sour or sweet. हमारा खाना कैसा है? salty है कि sour है, bitter है कि sweet है? इसका पता हम लगाते हैं कैसे? तो by the help of this tongue. हम इसी टंग की सहायता से हम इसका पता लगाते हैं. First, second, in swallowing the food. जैसे हम खाना को चबा लिए तो निगलने में कैसे? How to swallow it? तो ये टंग जो है वो जैसे हमारा टीथ की सहायता से मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया. Then how to swallow it? Which organ helps to swallow the food? Our tongue helps to swallow the food. वो क्या करता है? निगलने में मीन्स आगे उसको पीछे की तरफ भेजता है. कौन? That is tongue. Third, in mixing the food with saliva, producing the salivary gland. Children, in our mouth, salivary gland is present. वो salivary gland क्या करता है? salivary gland जो है वह हमारे फूड को क्या करता है? हमारे salivary gland जो है produces saliva. ये saliva निकालता है कहाँ से? salivary gland से. मैम आप म्यूट हो गई हैं. मैम यू आर म्यूटेड. ओके, यस मैम. आवाज आ रही है? यस मैम. ओके, so this salivary gland, this tongue mix the food with, this tongue helps to mix the food with salivary gland. This tongue helps to mix the food with salivary gland. Next, it helps in our speech. जैसे हमारे अंदर से साउंड निकलता है तो साउंड को स्पीच में कौन कन्वर्ट करता है? Which organ helps to convert it into speech? Our tongue helps to convert it into speech. हमारा टंग ही जो है वो उसको स्पीच में कन्वर्ट करता है. तो these four are the functions of our tongue. First, again I am repeating, what is the functions of the tongue? First, to know the taste of the food, either sweet, bitter, salty or sweet or bitter. Okay. Next, it helps to mix the food with salivary gland. Third, it helps to swallow the food. Fourth, it helps in our speech. अगर हमारा टंग का बनावट अच्छा है तो हमारे अंदर से जो साउंड निकलता है उसको स्पीच में कन्वर्ट करना, it is the function of the tongue. So these are the four functions of the tongue and it is very important. हर समय एग्जाम में पूछता है write down the functions of the tongue. तो कम से कम आप 2 तो जरूर ही याद कर लोगे और शायद आपको याद हो भी गया होगा. Functions of the tongue. Then come on. Children, there are so many taste buds are present in our tongue. हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं. तो जनरली 4 टेस्ट बर्ड्स के बारे में आपके बुक्स में भी है, डिस्कस किया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप अभी तो मैं टंग का स्ट्रक्चर नहीं बना सकती, आप अपने बुक में देखो. टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग. ओके, द टंग, द